یہ اکتوبر کے ابتدائی دنوں کے خوش اداسوں تھے۔ دھوپ کے روپ چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اس کے باوجود خنکی کا احساس بھی تھا۔ لوگ گھروں سے نکل کر کھیتوں میں اور دیگر کاموں میں مصروف ہونے لگے تھے۔ شہری تمدن سے بہت دور پہاڑوں میں گری تلچون وادی میں ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہنا بہت صبح سویرے اپنی ماں کے ساتھ بیدار ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد مہمان خانے میں موجود مہمانوں کے لیے ماں کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کیا۔ ایسا کرتے ہوئے کئی بار اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ مہمان خانے کے کمرے میں موجود زخمی افسر کا خیال آتے ہی اس کا دھیان بھٹک جاتا۔ پراٹھے بناتے بناتے وہ کئی بار کہیں کھو سی گئی۔ چونک کر ہوش میں آنے تک پراٹھے جگہ جگہ سے جل گئے تھے۔ اس سے پہلے ابا مہمان خانے سے آ کر بتا چکا تھا کہ رات جرگے نے جمشید کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس فیصلے میں بنیادی کردار محکمے کے آفیسر سلمان صاحب کا ہے، جنہوں نے یہ جان کر کہ جمشید اس کا بھتیجا ہے اور چند مہینوں بعد اس کی بیٹی سے شادی ہونے والی ہے، اسے معاف کر دیا۔ جمشید کے پہاڑوں سے واپس آنے اور اسے معاف کیے جانے کی خبر سے ہنا کے دل میں کوئی لہر نہیں اٹھی تھی۔ جب ابا نے اس سہمی آفیسر کے مہربان رویے کی تعریف کی تو اسے بہت اچھا لگا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر یہ خواہش کر رہا تھا کہ سب فارسٹ آفیسر کی تعریف کریں، اس کا تذکرہ کریں۔ اب ناشتہ تیار کرتے ہوئے ہنا اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات اس سے بس ادھوری سی چند ثانیوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے ذرا سی دیر کی ملاقات نے اس کے خاموش دل میں برسوں کی شناسائی کا احساس جگا دیا تھا۔ ماں بیٹی نے ناشتہ تیار کیا۔ دیسی گھی، مکھن اور ابلے انڈوں کے ساتھ پراٹھے بنا کر چھوٹے بھائی کو مہمان خانے میں بھیج دیا۔ ذرا دیر بعد چچا فقیر اللہ آ گیا۔ چنانچہ ہنا کے جی میں آیا کہ چچا فقیر اللہ کے ساتھ وہ خود بھی جائے، اس کمرے کے دروازے کے پاس جا کر بس ایک نظر اس زخمی آفیسر کو دیکھ لے، مگر وہ بس ایسا سوچ کر ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ مہمان خانہ پچھلی جانب تھا، وہاں سے باتوں کی آوازیں تو کبھی کبھار سنائی دیتی تھی، مگر وہاں موجود لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ انہیں دیکھنے کے لیے باہر کھیتوں میں جانا ہوتا تھا یا پھر چھت پر چڑھ کر دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مہمان خانے کی طرف اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں سنی۔ اس کا دھیان ادھر ہی تھا۔ رات ابا نے بتایا تھا کہ صبح آفیسر واپس جانے والا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا شاید زخمی آفیسر کو رخصت کیا جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر بے اختیار اس کے قدم لکڑی کے زینوں کی طرف چل پڑے۔ ماں سے آنکھ بچا کر وہ چھت پر آ گئی۔ وہاں سے دیکھا کہ مہمان خانے سے کئی لوگ باہر نکل رہے تھے۔ ان میں اکثر لوگ مقامی تھے، کچھ سرکاری کارندے بھی تھے۔ ہنا چھت کی منڈیر کے پاس جا کر خود کو اوٹ میں رکھ کر اچک اچک کر مہمان خانے کے داخلی دروازے کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ اب لوگ باہر نکل کر اس راستے کی طرف چل پڑے جو اس کے بڑے ابا شفاعت خان کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ اس کا ابا عنایت خان بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ وہ مقصود نگاہ مگر نظر نہیں آیا۔ ہنا نے کچھ اور انتظار کیا، مہمان خانے سے کوئی اور شخص نہ نکلا۔ اس وقت ایک خیال سے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، کہیں وہ زخمی آفیسر مہمان خانے میں اکیلا تو نہیں؟ یہ لوگ جو باہر نکلے ہیں یہ اسے رخصت کرنے نہیں بلکہ جمشید کے معاملے کو نپٹانے اس کے بڑے ابا کے گھر کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اگر زخمی افسر مہمان خانے میں موجود ہے تو میں خالی برتن لینے کے بہانے وہاں جا سکتی ہوں۔ ہنا نے کچھ دیر انتظار کیا، مہمان خانے سے کوئی اور شخص نہ نکلا۔ اس وقت ایک خیال سے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے چھت سے نیچے اتر آئی۔ چھوٹا بھائی اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا، وہ اسے ساتھ لے کر مہمان خانے کے دروازے پر آئی۔ لکڑی کے کھلے دروازے سے اندر جان کر دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے ذرا دھیمی آواز میں چچا فقیر اللہ کا نام لیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ برآمدے میں موجود دونوں کمروں میں سے زخمی آفیسر والے کمرے کا دروازہ آدھ کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے کے دروازے کے سامنے ہی چھوٹے بھائی کو آگے کیا۔ اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ کھلے ہوئے دروازے سے زخمی آفیسر بیڈ پر نیم دراز نظر آیا۔ سر کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھ کے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آٹھ پا کر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہنا ہچکچاتے ہوئے بولی، چچا فقیر اللہ کی طرح میں خالی برتن لینے آئی ہوں۔ وہ اس طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابھی کمرے میں موجود تھے، مجھے کچھ بتا کر نہیں گیا ہے۔ یہ سامنے ٹیبل پر تمہارے برتن رکھے ہیں، اندر آ کر لے جاؤ۔ وہ گھبرائی سی بھائی کو ساتھ لے کر کمرے کی ایک طرف تپائی پر رکھے برتن اٹھانے لگی۔ اسی وقت زخمی آفیسر کی آواز کانوں میں پڑی، تم نمبردار صاحب کی بیٹی ہو نا؟ جمشید کی تمہارے ساتھ شادی ہونے والی ہے نا؟ ہنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اس سے مخاطب تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی، جی ہاں۔ اس نے کہا، تم جانتی ہو اس نے کتنا غلط کام کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ آئندہ بھی اس سے باز نہیں آئے گا۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ بہت اچھے ہیں، اس کی برائی کے باوجود اسے معاف کر دیا۔ سلمان دھیرے سے ہنسا، پھر نرم نرم نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ کتنا اچھا ہوں، مگر نمبردار صاحب کے گھر کے طعام کھا کر مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہیں کوئی دکھ دو، ان کے ساتھ نمک حرامی کروں۔ رات تمہارے جانے کے بعد میں نے فقیر اللہ سے تم سب کے بارے میں پوچھا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے میٹرک تک پڑھا ہے۔ جی سر، یہ سب میرے ابا کی وجہ سے ہوا ہے۔ خاندان بھر کے لوگوں اور بڑے ابا کے گھر والوں سے مقابلہ کر کے انہوں نے مجھے پڑھایا ہے۔ وہ جھکی جھکی نظروں کے ساتھ بولی۔ جمشید بھی مان گیا تھا، پہلے تو بہت منع کیا، بعد میں ابا نے سب کو بنوا لیا تھا۔ فارسٹ آفیسر سے بات کرتے ہوئے اسے اچھا لگ رہا تھا، خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ سلمان زہر مسکرا کر بولا، میں جمشید کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے عدالت تک لے جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن تمہارے ساتھ رشتے کا علم ہوا تو اسے معاف کر دیا۔ پھر جرگے
को फैसला करने का इख्तियार दे दिया। ज़रा से फासले पर मौजूद इस ज़ख्मी ऑफिसर की आंखों से फूटने वाले शबनमी जज्बों से वो हौले हौले भीग रही थी। इसकी बातें बहुत नरमी के साथ इसके दिल में उतर रही थी। अब मजीद रुकने का याराना था। बाई के साथ कमरे में दरवाजे के पास पहुंचकर बोली, सर आपका ज़ख्म अब कैसा है? अब बता रहे थे आप वापस जा रहे हैं। वो हंसते हुए बोला, पहली बात तो ये है मैं अपने दफ्तर वालों के लिए सर हूँ, मेरा नाम सलमान अहमद है, मैं तुम्हारा नाम भी जान गया हूँ। दूसरी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है गोली ने हड्डी को नुकसान नहीं पहुँचा, जो ज़ख्म है इसका इलाज तुम्हारे गांव की डिस्पेंसरी से हुआ है। तीसरी बात यह कि मैं आज वापस नहीं जा रहा हूँ। 3 घंटे का पहाड़ी सफ़र घोड़े पर करना था, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दे होता, इसलिए मैंने आगे अपने बड़े ऑफिसर से हेलीकॉप्टर की बात की है। आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर कुछ गैर मुल्की मेहमानों को लेकर कल नांगा पर्वत की तरफ आ रहा है, वापस जाते हुए मुझे भी ले जाएगा। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने से एक दिन मजीद तुम्हारे हाथों के पके हुए खाने भी खा लूँगा। हिना का दिल अंदर से झूम उठा, कदम भी झूमने के अंदाज में उठने लगे। वो बर्तन और बाई के साथ कमरे के दरवाजे से निकल रही थी। इसी वक्त चचा फकीर अल्लाह इसके सामने आ गया। इसे घूरती हुई नजरों से देखते हुए बोला, हिना बेटी तुम अंदर क्यों गई हो? मैं खुद ही बर्तन लेके आने वाला था। इसने कहा, आपने बहुत देर लगा दी थी चचा, मैंने सोचा आप कहीं काम से गए हैं इसलिए मैं खुद ही चलेगी। वो सख्त लहजे में बोला, मेहमान आज भी मौजूद हैं, खाना लेने मैं खुद आऊँगा, तुम मत आ जाना, नंबरदार साहब गुस्सा होंगे। हिना जानती थी इन इलाकों में औरत का किसी गैर मर्द से मिलना बहुत ही मायूब समझा जाता था। इसी बुनियाद पर कत्ल भी होते थे, लेकिन वो नहीं समझती थी ऐसी कोई ताकत थी जो इसे कशां अजनबी ऑफिसर के पास ले गई थी। वो बहुत बोली थी, मोबाइल, टेलीविज़न और फास्ट मीडिया की चौकाचौंध से बहुत दूर। इस पहाड़ी माहौल में इसका दिल और दिमाग किसी कसाफत से पाक थे। सलमान अहमद की तरफ माइल होना, इसके बारे में सोचना इसके लिए गैर एहतियारी अमल था। पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती। माधोपुर में दिन के वक्त मौसम साफ था। सलमान अहमद और हिना झील की सैर से वापस आए, तब भी दूर दूर तक बादलों का निशान नहीं था, मगर रात के वक्त न जाने कब आसमान का मिजाज बदल गया। बड़ी ही गड़गड़ाहटों के बाद बारिश शुरू हो गई। ये सिलसिला सुबह तक जारी रहा। सलमान का ऑफिस जाना जरूरी था। इन दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। गोल दीवारों वाले डाइनिंग हॉल की महरोती खिड़कियों के बाहर बारिश अब भी बरस रही थी। रेस्ट हाउस के खुले लान में सरू, सेब और खुबानी के पेड़ों से बारिश का पानी तेजी से टपक रहा था। नाश्ते से फारिग होकर सलमान अहमद दफ्तर रवाना हुआ। हिना ने लाख मना किया, तेज़ बारिश का उज़र पेश करके रोका, मगर सलमान ने इसकी बात नहीं मानी। जंगल और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई कमेटी की आज इसके साथ अहम मीटिंग थी। इस कमेटी में सरकारी अफसर भी थे, अवामी नुमाइंदे भी शामिल थे, इसलिए सलमान अहमद ने तेज़ बारिश के बावजूद दफ्तर जाने का फैसला तब्दील नहीं किया। वो शाबान अली के साथ चला गया। हिना अपने कमरे में आ गई। इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में डिश के जरिए टीवी चलता था। वो कुछ देर टीवी देखती रही, फिर बेदिली से इसे बंद करके खिड़की के पास आकर बैठ गई। वहाँ से वादी की पिछली तरफ की खाइयाँ, ऊंचे दरख्त और इनके आखिर में खुश्क पहाड़ सर उठाए नजर आ रहे थे। इसी असना में बारिश का जोर टूट गया। ज़रा सी देर बाद मौसम में खुशगवार तब्दीली रौनमा हुई। माधोपुर के आसमान पर छाए बादलों में से सूरज को कोई रास्ता मिल गया। इसकी हल्की हल्की किरणें भीगी भीगी वादी में शबनमी रोशनी फैलाने लगी। कुछ देर बाद ये धूप तेज हो गई। हिना खुद को कमरे तक महदूद न रख सकी। रेस्ट हाउस के 3 अफराद कुशादा लान था, जो अहाते में तकरीबन 6 फुट की दीवार के अंदर था। चौथी जानिब रेस्ट हाउस की इमारत थी। हिना बाहर लान में निकलकर इस भीगी भीगी घास पर हल्के हल्के कदमों से चलने लगी। पानी के नीचे भी नमी थी। सर के ऊपर बादलों से उलझती धूप, बारिश के बाद ये धूप बदन में नरम नरम हाथों से जैसे गुदगुदी कर रही थी। कल झील से आते हुए रास्ते में थलचून के जमदर को देखकर वो रात भर परेशान रही। सलमान अहमद के हौसला देने पर वो मुतमईन हो गई, मगर हफीफ सी हालिश अब भी बाकी थी। इस वक्त रेस्ट हाउस का खानसामा इसके पास आ गया। बेगम साहबा, मैं गोश्त लेने बाजार जा रहा हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दे। वो तशवीश भरे लहजे में बोली, चचा आप भी जाएंगे तो रेस्ट हाउस में मैं अकेली रह जाऊंगी, मुझे खौफ आ रहा है, आप ना जाएं। सलमान साहब आ जाएंगे तो ले आइएगा गोश्त। बूढ़ा हंसा हंसा, बेटी हमारी वादी के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, ये किसी को तंग नहीं करते। आप रात के वक्त भी अकेली रहेंगी तो कोई खतरा नहीं होगा, आप सुकून से धूप के मजे लें, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। हंसामा ये कहकर रेस्ट हाउस से बाहर चला गया। हिना इसे बता नहीं सकी कि वो माधोपुर के लोगों से खौफज़दा नहीं, इसके अपने गाँव के एक छोटे शैतान को यहाँ देख लिया गया था, जिसने माजी में एक बड़े शैतान के साथ मिलकर इसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया था। हंसामा के जाने के बाद वो कुछ देर खुले लान की चमकीली धूप में चहलकदमी करती रही, फिर इसकी पथरीली रविश पर चलती हुई अहाते की दीवार के करीब होती हुई अंदर कमरे की तरफ आने लगी। इसी वक्त कोई चीज़ जोर से आकर इसके सीने से टकराई। इसने ठटक कर देखा, इसके कदमों के पास मुर्गी का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। इससे ताज़ा खून उबल रहा था। ऐसा लग रहा था अभी अभी गर्दन काट कर इसकी तरफ फेंका गया है। इसने अपने सीने पर हाथ फेरा, इसके कपड़े पर भी खून के धब्बे पड़े थे। खौफ की एक सर्द लहर इसके पूरे बदन में सराहियत कर गई। रेस्ट हाउस के अंदर कोई मौजूद नहीं था। ये बाहर से अहाते की 6 फुट की दीवार पर किसी ने ताक कर इसका निशाना लेकर फेंका था। वो डरी सी बारी कदमों के साथ अंदर कमरे की तरफ आने लगी। इस वक्त दब से कोई चीज़ इसके सामने आकर भीगी घास पर गिर पड़ी। रात भर की बारिश के बाद कुछ पानी अब भी लान में मौजूद था। इस चीज़ के गिरने से पानी के बहुत से छींटे हिना तक भी पहुंचे। इसने चौंक कर देखा, फिर दिल उछल कर जैसे हल्क में आ गया। एक दरमियानी साइज की मुर्गी का सर, कटा, दर्द, सामने गीली घास पर
नजर आ रहा था। इससे उबलते खून से घास में मौजूद पानी भी सुर्ख हो रहा था। खौफ से हिना का बदन सनसनाने लगा। एक इज़्तिरारी अमल के तौर पर वो दौड़ती हुई कमरे में आ गई, दरवाज़ा बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मुर्गी का कटा हुआ सर और दर्द बेशक आम हालात में किसी भी तौर पर डरावना अमल नहीं होता, मगर जिस तरह के माह साल गुजरे थे, फिर कल झील से आते हुए जमशेद का साथी जमदरी से नजर आया था, इसी तनाजुर में ये छोटा सा वाक़या इसके लिए हेबतनाक था। इसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि दरबदरी और परेशान हाली के जिस आसेब से वो निकल कर आई थी, अब फिर से वो सिलसिला शुरू होने वाला था। वो खौफ से कामती देर तक कमरे में पड़ी रही। हांसामा अभी तक नहीं आया। मेन गेट इसने जाते हुए बंद कर दिया था। इसके बावजूद अनदेखे दुश्मन के खौफ से वो बंद कमरे के अंदर भी लर्ज रही थी। रेस्ट हाउस में फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं थी। माधोपुर में अभी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता था, इसलिए सलमान से रब्ते का कोई जरिया न था। काफ़ी देर बाद इसके कानों में अपनी गाड़ी की मानूस आवाज़ें सुनाई दी। इसने झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सिसकियाँ बढ़ती हुई तेज़ी से जाकर सलमान अहमद से चिमट गई। वो हैरानो परेशानी से संभालते हुए बोला, अरे हिना, क्या हुआ? तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? और जी तुम रो भी रही हो, आखिर माजरा क्या है? शाबान अली भी गाड़ी लाग करके करीब आ गया। हिना सहमे सहमे अंदाज में सलमान को बताने लगी कि इसके साथ क्या हुआ। सलमान ने इसके साथ जाकर मुर्गी का कटा हुआ सर और धड़ भी देखा। कई तरह की परेशानियों ने घेर लिया था। इसने रेस्ट हाउस से बाहर निकलकर देखा, अहाते की दीवार से बाहर खुले खेत और शहतूत के दरख्त थे। कुछ फासले पर 2-4 घर बने हुए थे। इसके पूछने पर हांसामा ने बताया कि इन घरों में लोग मकामी रहते हैं, वो बड़े शरीफ हैं, पहले कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। सलमान को समझ नहीं आ रहा था कि इस हरकत के पीछे कौन हो सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब हिना लान में अकेली चहलकदमी कर रही थी। क्या कोई इत्तेफाक था या जानबूझकर ऐसा किया गया था? इसके जहन में ये सोच भी सरसराती रही कि क्या ऐसा करने वाला इन्हें कोई पैगाम तो नहीं दे रहा। इन दोनों के दिलो दिमाग में यही अंदेशे करवटें लेने लगे। माजी का आसेब इनके ताक़ुब में यहाँ तक आ गया। 1 साल तक जिस सितमगरी ने इन दोनों को बेहाल कर दिया, क्या वो बेरहम मौसम फिर लौट आए हैं? क्या इन्हें दुश्मनों के दस्त बुर्द से बचने के लिए एक बार फिर बेतहाशा भागना पड़ेगा? वो मेहमान खाने से खाली बर्तन लेकर वापस आई तो माँ ने बिसत लहजे में सरजनिश की, जवान जहां लड़की का यूं सर उठाकर किसी गैर मर्द के पास चले जाना इस इलाके की रवायात के मुनाफी था। हिना इलाके की रवायात से वहाँ की तहजीबी इक़्तिदार से वाकिफ़ थी, मगर फॉरेस्ट ऑफिसर ने खुदा जाने कैसी कशिश थी कि इसे माशरती रवैयों की शिद्दत पसंदी के खौफ से बेनियाज कर दिया था। वो 2 दफ़ा बर्तन लेने इसके कमरे में गई, अब मज़ीद मुमकिन नहीं रहा। फ़कीर अल्लाह चचा ने भी वाज़े अंदाज में इसकी आमद को नापसंदीदा नज़रों से देखकर मना किया था। अब माँ भी तंबीह कर रही थी। इस दिन वो बेकरार रही। ये सलमान का थलचून में आखिरी दिन था। कल सुबह इसके लिए आर्मी हेलीकॉप्टर आने वाला था, फिर वो चला जाएगा। इसके बाद ना जाने कब वो मेहमान बनकर आएगा। क्या इससे फिर कभी मुलाकात भी हो सकेगी? दोपहर और शाम के वक्त फ़कीर अल्लाह चचा खुद ही आ गया। इसका तैयार करता खाना लेकर चला गया। इसके बाद हाली बर्तन भी वही दे गया। हिना दुआएं ही मांगते रहेंगी कि वो कहीं काम से बाहर चला जाए और खाना लेकर पहुंच जाए, इससे आखिरी बार हम कलाम हो सके, लेकिन इसकी मुराद पूरी ना हो सकी। चचा फ़कीर अल्लाह ने भी जैसे कसम खाई थी कि हिना के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ेगा। इस रात अब्बा बेहद खुश और मुतमईन था। मेहमान खाने से आकर वो ये बता गया था कि जमशेद को बुलाने 2 आदमी पहाड़ों की तरफ गए हैं। इसे लेकर रात किसी वक्त भी गाँव में पहुंचने वाले हैं। ये भी अच्छा हुआ कि सलमान अहमद शहर वापस नहीं गए। अब जमशेद इनके सामने हाजिर होकर अपने किए की माफ़ी मांगेगा और आइंदा ऐसा ना करने का अहद करेगा। अपने दिल की बेचैन धड़कनों से सरगोशियाँ करते करते वो रात गए तक जागती रही। इस मानूस अजनबी के बारे में सोचती रही। रात के पिछले पहर इसके कानों में मेहमान खाने की तरफ से आती आवाज़ों का शोर सुनाई दिया। कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। फासला ज़्यादा होने की वजह से बातें सुनाई नहीं दे रही थी, महज आवाज़ें कानों में पड़ रही थी। अचानक इसके दिमाग में रोशनी का जमाका हुआ। इसे याद आया, अब्बा ने बताया कि जमशेद की तलाश में गाँव के लोग गए हैं। मुमकिन है इस वक्त जमशेद इनके साथ वापस आ गया हो। इसके जी में आया कि बाहर निकल कर देख ले, लेकिन हिम्मत ना कर सकी। वो कमरे में अकेली नहीं थी। इसकी अम्मी और छोटा भाई भी अपने बिस्तर में सोए हुए थे, इसलिए धड़कते दिल को दिलनशी जज्बात की थपकियां दे देकर खुद भी सो गई। सुबह के वक्त अम्मा ने इसी जगह नमाज से फारिग होकर दोनों बावर्ची खाने में आ गई। इस वक्त मेहमान खाने से नंबरदार अनायत खां भी आ गया। हिना की माँ के इस्तफसार पर इसने बताया कि आधी रात के वक्त जमशेद अपने साथियों के साथ वापस आ गया था। इसने जरगा के सामने अपने साथियों समेत माफ़ी मांगी, आइंदा के लिए जंगलात की गैर कानूनी कटाई से बाज रहने की यकीन दहानी कराई। सलमान ने न सिर्फ इसे माफ़ कर लिया बल्कि यह वादा भी किया कि वो अपने महकमे में इसकी मुलाजमत की सिफारिश करेगा। हिना की माँ फॉरेस्ट ऑफिसर को दुआएं देने लगी। जमशेद के साथ जो भलाई की गई थी, शायद आम हालात में इसकी माँ ज़्यादा खुश न होती, मगर अब हिना का मुस्तकबिल उसके साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे में बेटी के शोहर का महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल इसके लिए मसरतों का बायस था। अब्बा के जाने के बाद दोनों माँ बेटी मेहमानों के लिए रवायती अंदाज के पराठे, घी, मक्खन और देसी अंडों का नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ हो गई। सूर्य तुलू हो गया। दोपहर की सुनहरी किरणें नांगा पर्वत की बर्फीली चोटियों से लिपट कर सरगोशियाँ करने लगी। इतने में फ़कीर अल्लाह चचा भी मेहमानों के लिए नाश्ता ले जाने के लिए पहुँच गया।
हिना ने अपने हिस्से का काम सच्चे जज्बों से सर अंजाम दिया। फॉरेस्ट ऑफिसर आज आखिरी दफ़ा इनका मेहमान था, इसलिए इसने एक एक चीज़ जी जान से तैयार की थी। वो जानती थी कि यह नाश्ता 12-15 अफराद के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इसे बाकी अफराद से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बात इसके लिए अहम थी कि सलमान इनमें शामिल था। वो नहीं जानती थी इन पराठों और अंडों में से सलमान के हिस्से का कौन सा है, इसलिए वो सब चीज़ें ही एक से प्यार से बना रही थी, जैसे बस वही इनका मेहमान है।